Hello everyone, welcome to the Health Beach Care podcast show. And my name is Amit. I am the founder of Health Beach Care, a dedicated healthcare marketing agency helping hospital, doctor, clinics to grow their profitability with the help of our proven system called Pull Tier. And today we have a special guest, Dr. Ankit Saha. He is the director of the Right Bite Sleep and the TMJ Pain Care. So welcome Dr. Ankit Saha and thank you for being here. And so kind of you, Amit, for inviting me. Yeah, so kind of you. Thank you so much. So I'll just start with if you can tell more about the Right Bite Sleep and the TMJ Pain Care. Yes, thank you for asking. So Right Bite Sleep and TMJ Pain Care is the brainchild of our founder, Dr. Rajesh Ravindranathan, in the year 2017. Although it started previously as GR craniofacial pain, we had many iteration of what we are today. We started from the year 2007 doing what we are doing to become today a chain of clinics which are based in 4 cities in India: Delhi, Bombay, Bangalore and Kolkata. And also right now with its branches in Dubai and Kathmandu and growing. We are expecting to join this year with Jeddah and New Mexico. And all of this has come from a very small thinking of trying to treat a joint which is there of the mouth, which is called the TMJ. And we treat it by using concepts of neuromuscular dentistry and believing that TMJ's use is very important for a patient to remain fit and fine, because it has a direct communication with our breathing. So with this thought process, we have over the years grown, and we are catering and treating patients of temporomandibular joint disorders and patients of sleep apnea, because even though people don't know, they are connected. And it is just not these two diseases. There is a multiple things that people need to understand what we do, because our basis remains very simple. If you breathe well, your jaw structures will remain well. And if your jaw structures are not in a proper position, your breathing is not going to be proper. And as a result of which, you will have all the problems that one can think of when we say that you have breathing difficulties. As simple as that. Great. Thanks for that. And I think I have some few more questions regarding that you have told about neuromuscular dentistry. So if you can elaborate, ये होता क्या है बेसिकली जो न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम लोग डेंटिस्ट्री को ही सबसे पहले समझना चाहिए. सो डेंटिस्ट्री बाय इटसेल्फ अगर आप देखेंगे दैट इट इज नॉट जस्ट दांत का, सिर्फ दांत सोच के हम लोग सोचते हैं. बट अगर किसी ने अगर इवन हम लोग को थोड़ा सा भी डीप देखा तो इसमें 9 ब्रांचेस होते हैं. इवन बाय लर्निंग 9 ब्रांचेस. ओके, आई हैव नॉट इवन कम न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री 9 ब्रांचेस में भी नहीं पढ़ता. बट लेट्स स्टार्ट सिंपल. क्या एक व्हाट शुड अ डेंटिस्ट बी लुकिंग एट? डेंटिस्ट को क्या देखना चाहिए? डेंटिस्ट को देखना चाहिए मुंह के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है, राइट फ्रॉम दांत टू गम्स टू द चीक टू योर टंग टू सॉफ्ट टिश्यूज, हर चीज. लेकिन उसके बाहर भी कभी कभी हम लोग को जाना पड़ता है. तो ये जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो उसके ऊपर नाक आ जाता है, और उससे भी थोड़ा सा जाएंगे तो आप समझना पड़ता है दांत किस चीज के ऊपर बैठा हुआ है. दैट इज योर मैक्सिला, योर जॉ, और इस जॉ के साथ जॉइंट. अच्छा. तो कोई भी अगर डेंटिस्ट्री बहुत अच्छे से करना चाहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेंटिस्ट्री का बेसिस रहता है कि हमारा पोजीशन सही रहे. So if that position has to be maintained, what maintains anything's position in the body is muscles. Neuro, that means the nerves which supplies those muscles, the muscles which holds the jaw there, and the bone which is the TM joint and the teeth. ये चारों चीजों को जब मिलाते हैं and we start looking and treating, तब न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री का एक उत्पादन होता है. So ये कॉन्सेप्ट वॉज नॉट, इट्स स्टिल नॉट देयर इन आवर साइंस. हम लोग के मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे या कोई भी लेके जाते हैं तो हम लोग कभी हम लोग बताते भी नहीं हैं. तो हम लोग आपके पास एक जस्ट थिंक, आप एक डेंटिस्ट के पास क्यों जाएंगे? आप बोलेंगे दांत में कीड़ा है, दांत उठाना है, साफ करना होगा, या टेस्ट स्टेन वगैरह हुआ है. तो मोस्टली आप कभी भी सोचेंगे कि मेरा सर दर्द है तो दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
आई थिंक नो वन थॉट ऑफ दैट वन। आप कराटे मारते रात को, आप जाएंगे डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास? हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग का डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हम लोग वो भी दांतों का डॉक्टर, राइट? क्योंकि लोगों को मतलब सोचना होता है, पीपल थिंक दैट आई मे हैव टू गो टू द neurologist, right? Correct, or someone else, but correct. I don't know how is it going to be related to the dentist. Exactly. तो यही चीज के कारण से न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री कहीं ना कहीं उस एम्प्टी स्पेस को ठीक करता है। अगर आप बोलेंगे कल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपके पास पेशेंट कैसे आते हैं, अगर कान में कोई कटकट आवाज आता है तो आप कोई भी अगर कान का डॉक्टर है तो कान का डॉक्टर क्या करेगा? ही विल लुक इनसाइड द ईयर एंड ही विल से द ईयर इज ओके, देयर माइट बी प्रॉब्लम समवेयर हियर। अब इस चीज को कौन देखेगा? हु इज गोइंग टू सी? अ न्यूरोलॉजिस्ट, अ डेंटिस्ट और अ ENT? Nobody is seeing this part. Okay. And this part is the most biggest thing that you have. So what is this called? This is called the TMJ, the temporomandibular joint. और simply अगर हम लोग अच्छे से सोचे इसका क्या, मुंह का जॉइंट। और ये मुंह का जॉइंट एक ऐसा चीज है कि इसके बारे में अगर मैं आपको एक वाइवा में पूछ लिया जॉइंटों का नाम बताइए, तो आप मुंह का जॉइंट के बारे में याद नहीं आएगा आपको। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल जॉइंट जो आपको कभी तकलीफ नहीं देता। ये रोज काम कर रहा है। आपको अगर कोई जॉइंट इससे ज्यादा काम करता है तो आप मुझे नाम बता दीजिएगा। ऐसा कोई जॉइंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये जॉइंट चलता है, लेकिन तकलीफ नहीं देता, इसलिए लोगों को याद नहीं आता। पैरों में एक बार कुछ हो जाता है तो आपको याद आ जाती है, ओ माय गॉड क्या हो गया, एंड इसलिए आप नी डॉक्टर को देवास जाते हैं। बट TMJ डॉक्टर क्यों हम लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि ये मुंह का जॉइंट इतना बखूबी से अपना काम करता है। बट कभी कभी जब तकलीफ देना शुरू करता है तो आपका लाइफ भर ये आपको हर दिन याद दिलाएगा। वाई? बिकॉज इस मुंह के जॉइंट से आप खाना चबाते हैं, यू आर टॉकिंग एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स यू आर ब्रीदिंग। ओके। And that is the main reason why so many of these things are going wrong. When you start using that joint for things that is not meant to be, तब सारे problems टक 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 करके आपका headaches, आपके apneas, ये सब कुछ इसके लिए हो रहा है। So what are the signs and symptoms? लोगों को कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि सर दर्द हो रहा है, मेरा पेन हो रहा है, ठीक है, but how is it going to related to the TMJ? Because most people never thought that it can be related to the TMJ, और मेरे को दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो भी TMJ के लिए। बहुत सारे लोगों के पास पता ही नहीं होता है होता क्या है ये TMJ, राइट? एग्जैक्टली। तो ये TMJ जब मैंने बोला टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसका डिसऑर्डर का नाम है TMD, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स। ओके। अब ये डिसऑर्डर्स इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको कुछ डॉक्टर्स इसका नाम देते हैं TMD कॉम्प्लेक्स। अच्छा। और अगर इससे भी ऊपर जाए, जो आज का सबसे नया इसको टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, इसको बोलते हैं CCMD, क्रेनियो सर्वाइको मैंडिबुलर डिसऑर्डर। मतलब ये और ये सारे कनेक्टेड है इस जॉइंट के साथ। अच्छा। बहुत ही सुंदर तरीके से कनेक्टेड है। अब पेशेंट को क्यों आएगा, ये सबसे पहले अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत इजी होता है। अब बात को समझिए, एक पेशेंट आपके माइग्रेन के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है, तो आपने जैसे बोला पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। करेक्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा उसका? वहाँ पे चेकअप होने के बाद शायद ही विल बी प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिंस, CT स्कैन, MRI, other scans that they will। आप अगर कोई भी मेडिसिन देख ले, मोस्ट ऑफ द अगर डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, स्टार्टिंग में वो लोग क्या करते हैं, सैरिडोन जैसे मेडिसिन से काम आता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हेडेक से हो जाता है। पेन किलर। तो अगर पेन किलर्स आर वर्किंग, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हैज अ मसल हैज टू बी अफेक्टेड इन दैट। पीपल हैव दिस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि नर्व्स मसल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, बट नो, बिकॉज नर्व्स आर पासिंग थ्रू मसल्स एंड द मसल्स को भी स्पैजम्स आते हैं, तो दे कैन कंप्रेस द ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर डॉक्टर ने CT स्कैन MRI करके देख लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के बाहर ही खोजना पड़ेगा। अब अगर आप सरदर्द, ये जो वर्ड यूज करेंगे, माइग्रेन करेंगे, आप अगर किसी भी पिक्चर को उठा ले, लोग देखेंगे यहां पकड़ते हैं, करेक्ट? दिस इज अ साइन कि आपको सरदर्द है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा मसल है जिसका नाम है टेम्पोरालिस मसल। ओके। और इस टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई करता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब ये नर्व
का जो सप्लाई और सब कुछ है ये टीएम जॉइंट के साथ जुड़ित है, ट्राइजेमिनल नर्व के साथ। ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बट बहुत सिंपली समझिए, ये टेम्पोरालिस, और इस टेम्पोरालिस के साथ क्या जुड़ा है, टीएमजे, टी ऑफ टेम्पोरालिस। So that is how it is related to the करेक्ट। okay तो अगर आपको देखिए, मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि हम लोग का जो साइंस है इंडिया में, वी हैव टू हैव गुड रेफरल सिस्टम्स। आपने जब बोला कि एक पेशेंट जब सर दर्द होता है पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, विच इज़ वॉट समटाइम्स वी आर डूइंग इट रॉन्ग। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट डेवलपिंग, ओवर टाइम्स वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेडिसिन, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी। पुराने दिनों में जीपी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता था। सो जीपी's रोल इज टू एक्चुअली डायग्नोज एंड सेंड इट टू अस। नाउ हु आर वी? आई एम, मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑफ ओरल मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी। आई एम एन ओरल फिजिशियन। okay जो जब ओरल फिजिशियन इज लाइक अ जनरल फिजिशियन, मेरा डायग्नोसिस करना काम है। Right. अगर मेरे पास पेशेंट आए विद अ टीएमजे प्रॉब्लम एंड अ माइग्रेन प्रॉब्लम, मुझे तो डायग्नोस करना ही टीएमजे के साथ कनेक्टेड है। सो आई विल फॉलो प्रोटोकॉल्स, आई विल फॉलो कि एक पाथ है जहाँ पे मेरे को पता है सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब एरियाज का भी डायग्नोसिस होना जरूरी है। So my question is, sorry for the interruption. So when people will come to TMJ, like you are the TMJ specialist in Kolkata, and your focus is TMJ and like sleep apnea, right? And that, so when people will come to TMJ specialist, at what stage? वही मैं बोल रहा था कि आपका माइग्रेन्स अगर आपने डॉक्टर ने दिखाया है, अगर द राइट वे इस जीपी मुझे रेफर करे, सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जीपी रेफर करे, माइग्रेन से खराटे है, गो एंड शो इट टू दिस डॉक्टर। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे वी हैव कम टू अ पॉइंट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, और बहुत सिंपल कर देता हूँ लोगों के लिए। व्हेन यू फाइंड दैट योर रिपोर्ट्स ऑफ योर ब्रेन्स आर नेगेटिव, you find that you are having snoring without any chest problems, physical problems. Right. तो अगर आपको कोई और concomitant problems ना हो जिसके कारण से आपका कोई डायग्नोसिस नहीं निकल रहा है, तो मेरे पास एक बार जरूर आइए। बहुत सिंपल कर दे रहा हूँ। आई एम अ डॉक्टर who should have been met first, but unfortunately यहाँ पे क्या होता है कि आपको भी जब पता नहीं होता है कहाँ जाना है, तो अगर बहुत सालों से आपने मेडिसिन खाया है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपने डॉक्टर्स को माइग्रेन्स के लिए दिखा दिया, आपने खराटों के लिए डॉक्टर्स को दिखा दिया, आप टायर्ड फील करते, दसों प्रॉब्लम्स है जो उसके बारे में हम लोग और भी बात करेंगे अभी। बट सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आपको सबसे पहले कोई भी अगर डॉक्टर सबसे ज़्यादा दिखता है, आप टेक फ्रॉम मी, आप बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाते होंगे, Right. आप लिस्ट निकालिए डेंटिस्ट को कितनी बार आप दिखाए होंगे। यू विल समहाउ सी धीरे धीरे डेंटिस्ट ज्यादा हुआ होगा, बिकॉज डेंटिस्ट के पास एक्चुअली हर 6 महीने पहुंचना चाहिए। करेक्ट, राइट। आई थिंक दैट्स एक्चुअली फॉलोइंग इन यूएसए, बट आई थिंक इंडिया में होता इंडिया में तो होता नहीं है। दांत में दर्द होता है तभी जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सबसे ज्यादा जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनको आप सब प्रॉब्लम्स बताइए, हो सकता है वो मुझे ज्यादा रेफरल भेजे, और नहीं होगा तो मेरे पास डायरेक्टली आइए। ये याद रखिएगा कि आप ये मत सोचे कि ये दांत का डॉक्टर है तो ये इतना ही देखेगा, कभी कभी आपको भी नहीं पता है हाउ क्लोजली इट इज कनेक्टेड। So like you talk about the sleep disorders, like snoring, बहुत सारे लोगों का खराटा मचता है, फिर मतलब they are not able to getting sleep properly, right? So नींद पूरी नहीं होती, फिर next day they are feeling lethargic, they are not able to. So is it also something related to the TMJ? Yes. Or it can be something else? बहुत सिंपली अगर पकड़े, मैंने जैसे आपको बोला कि TMJ अगर हम लोग का माइग्रेन्स और हेडेक्स और नेकेक के साथ कनेक्टेड है, इट इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू स्लीप एपनिया। नाउ लेट अस ब्रेक डाउन व्हाट स्लीप एपनिया है क्या। अगर मुझे एक शब्द में पूछा जाए तो मैं सिंपली लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये आपका नींद का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सांस लेने का प्रॉब्लम है। योर एयरवे डिस्टर्बेंस, मतलब आप जब सांस लेते हैं कहीं ना कहीं रुकावट आती है। That is why the most common sleep apnea is obstructive sleep apnea. Okay. Sleep apnea can be divided into two, central and obstructive. I do not want to go into central because it will divert us. But yes, sleep apnea is divided into two. तो उसमें सबसे जो common है, जो आप अगर बोलेंगे, अगर studies निकाला जाएगा, out of 10 people 3 और 4 बोला जाता है, which is a very small. I think studies सही से नहीं किया गया because sleep study करना भी बहुत इतना प्रचलित नहीं है. But आपके घर में स्नोरर रहेंगे जो रात को सोते हैं, कॉमन प्रॉब्लम, करेक्ट। सो इसके अगर इतना कॉमन है तो अब डरिए मत, ये कॉमन प्रॉब्लम ही है। अब इसका कारण क्या है ये समझना है।
बहुत सिंपल से समझिए कि आपका जो टंग है वो फॉल बैक करके आपके एयरवे को बंद कर देता है। ब्लॉक। अब एयरवे को जब बंद करता है तो आप कैसे ब्रीथ करेंगे? मुंह से ब्रीथ करेंगे। अच्छा। अगर मुंह से ब्रीथ करेंगे तो रात भर जो चीज़ नहीं चलना चाहिए वो अगर चलेगा तो क्या चलेगा? जॉइंट चलेगा। अगर जो चीज़ जो बना हुआ था कुछ घंटों के लिए चलने के लिए, आप उसको पूरी रात चलाएंगे तो आप मशीन का क्या होने वाला है? कोई भी मशीन ब्रेक डाउन होगा। राइट। सो दैट इज व्हाई योर TM जॉइंट गेट्स डैमेज्ड वेरी इजीली व्हेन यू हैव स्लीप प्रॉब्लम्स। अब आपका ये क्वेश्चन जो मैं पास बहुत आता है कि सर स्लीप एपनिया के लिए मैं आऊं आपके पास कि TMJ प्रॉब्लम के लिए आऊं? Right. मैं बहुत सिंपल सा करना चाहता हूं कि अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो कौन आपको देखना चाहिए? इज देयर अ स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे? यस, देयर आर स्लीप मेडिसिन पर्सनालिटीज जो अपने आप का बैकग्राउंड होता है पल्मोनोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। वो लोग नॉर्मली आजकल देखते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो लोग किस कैटेगरी पेशेंट्स को देखते हैं। मोस्टली अगर आप स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम्स देखेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रहता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। धीरे धीरे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के कारण से यू हैव प्रेशर ऑफ COPD, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम्स है। सो अब ये सब चीजों के पास आप जब तक पहुंचते हैं, those are your years and years of sleep apnea causing lot of these problems, or maybe of some other causes causing that issue. So is it also related to the allergy? Because I think there are many people like who will go to the ENT and they are having this snoring problem. At the same time, they will have this allergic, right? Correct. Then, so ये जो ENT मैं जहाँ पे आता हूँ, हर बार अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेंटिस्ट की मिसिंग है। रीजन क्या है कि लोग फिर से नहीं समझ रहे हैं कि आप अगर इस चीज को समझेंगे कि एयरवे बहुत सा पार्ट इस मुंह के पीछे से जा रहा है। अच्छा। तो ये मुंह जब तक आपका रहेगा, उसको आप जब तक उसको ठीक जगह पे नहीं रखेंगे, आप एयरवे कंप्रेस तब तक होता रहेगा, तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। तब आप क्या करेंगे? मुंह से सांस लेंगे। यू विल बी ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ। राइट। नाउ दिस ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ, in any textbook, you start with yoga, you talk with Ayurveda, you talk about any medicine, you will say nasal breathing के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया जाता है। बट आज के ज़माने में अगर आप उठाएंगे नेजल ब्रीदिंग से ज़्यादा वो माउथ ब्रीदिंग करें। कैसे पता चलता है? ठोट सूख जाते हैं, मुंह थोड़ा सूख जाता है, बात करते करते बहुत सूख जाता है। पेशेंट्स को कभी कभी सुबह उठते हैं पूरा मुंह सूखा है, घाटी गला सूखा हुआ है। पेशेंट कभी कभी बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ही हाँपना होता है, मैं चलता हूँ हाँपने लगता हूँ। छोटे रूम में कभी कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। अच्छा। सो व्हेन यू कंपेयर इट यू विल सी दैट माउथ ब्रीदर्स इतने ज्यादा है। अगर इस माउथ ब्रीदर्स को रात को सोएंगे तो क्या होगा? मुंह से सांस लेंगे, जो खराटे होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम लोग खराटे के पीछे दौड़ते हैं। जो खराटे हम लोग याद रखिएगा, खराटे यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है? जितने जोर से किया। नो, माउथ ब्रीदिंग इज गोइंग टू एंड अप इन स्नोरिंग। नाउ रात को सब सोते हैं, कौन किसको टेस्ट कर रहा है, किसका चल रहा है, तो टेस्टिंग भी सही से नहीं होता है। आप जितने भी आज के दिन में ब्लड टेस्ट करेंगे, ECG करेंगे, सब जागे हुए अवस्था में करते हैं। रात को सोते हुए कौन सा टेस्ट होता है? एक ही टेस्ट होता है, और वो टेस्ट स्लीप टेस्ट, राइट। और वो सबसे कम होता है अगर आप देखेंगे कंपेयर टू एनी अदर थिंग्स। आपने कितने साल में किए होंगे? किए नहीं होंगे। इन US if you have to renew your insurance, health insurance, they ask you to do a sleep test, and that is how प्रचलित है। यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस के पास जाएंगे, आपने स्लीप टेस्ट का जिक्र कर दिया या स्लीप एपनिया का जिक्र कर दिया, इमीडिएटली आपका इंश्योरेंस बंद हो जाएगा। बोलेंगे आपका स्लीप एपनिया है, आपका कोई कवरेज नहीं मिलेगा, बिकॉज वी डोंट कवर स्लीप एपनिया। तो लोग डरते भी है बोलने में। अब प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि अगर हम लोग नहीं समझ रहे स्लीप एपनिया क्या है, तो आप क्या पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे पल्मोलॉजिस्ट के पास लास्ट में, लंग स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन आप समझे कि एक माउथ ब्रीदिंग है तो किसके पास जाना चाहिए? डेंटिस्ट के पास। I think that's a very important point. हम लोग डेंटिस्ट को अगर जब तक हम लोग सिर्फ उस नजरिए से देखेंगे, डेंटिस्ट भी अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा। हम लोग उस लेवल पे पहुंच पाए बिकॉज वी न्यू वी वर मिसिंग समथिंग, right? We have upgraded. A dentist is happy doing this. Don't keep him happy. Make him, sir, why are you not looking at this? अगर आप पूछेंगे, हो सकता है वो डेंटिस्ट आपका करेगा। घर घर में सब डेंटिस्ट इसको देखेंगे तो ये चीज ना इतना रहेगा, इतने प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि आपने जो मुझे पूछा एलर्जी के बारे में, सिंपल सा चीज है। माउथ ब्रीदिंग और नेजल ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है? मुंह से सांस लेते हैं, इसमें थ्रू नेजल प्रोबब्ली। डिफरेंस इन एयर जरूर होता है।
आपके नाक में फिल्ट्रेशन रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया जाता है जो इज लाइक अ केमिकल विच गेट्स मिक्सड इनटू द एयर एंड अलाउज यू टू रिटेन ऑक्सीजन बेटर। ओके। तो माउथ ब्रीदिंग कभी भी किसी भी हालत पे इट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर होगा भी तो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, दैट्स इट। दैट ऑल्सो एक्सर्शन के टाइम पे भगवान ने उसको दिया था आपको ताकि यू कैन यूज दिस ओनली व्हेन यू रिक्वायर टू मच ऑक्सीजन, लेकिन बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर होल ब्रीदिंग चेंजेस। ब्रीदिंग, ओके। नाउ you're not getting enough oxygen. Right. What do you expect will happen to your body? Slowly things are going to be tired. सुबह उठ के टायर्ड फील होना, दिन भर थकान रहना, आप थोड़ा सा भी चल रहे यू फील फटीग्ड, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स एंड अप बीइंग रिलेटेड टू सम, सो नहीं पाए, नींद नहीं आया। राइट। हम लोग नींद को अगर सही से नहीं होता है तो हम लोग किसी से डिस्कस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एलर्जीज, कोल्ड, सर्दी खांसी लगा रहता है। राइट। आप अगर मुंह से सांस लेंगे एलर्जी होगा ही होगा, नाक बंद रहेगा ही रहेगा। ये नाक और मुंह कनेक्टेड है, एक ही बोन है बीच में अटका हुआ। ये बोन जितना ग्रो करेगा उतना नाक का स्पेस बढ़ेगा ब्रीथ करने के लिए। लेकिन नाक के डॉक्टर्स मुंह के साथ नहीं काम करते, मुंह के डॉक्टर्स नाक के साथ। So that is what I think TMJ specialists will come to the picture, right? And so what will be your advice for the people who are suffering from this or like then? सबसे पहली बात what I want to say to people is that get yourself tested. This is very important. These are diagnostics are available like CBCT, airway analysis. We get something called polysomnography. Simple tests are available. आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे Apple Watch has also launched a feature in every Apple Watch where you can test sleep. Okay, Right. It's not the best, but absolutely it is at least you start talking. कल अगर आपका वॉच खरीदने जाए और आपका फीचर में दिखाए कि मैं आपका स्लीप ट्रैक कर रहा हूँ, परफेक्शन। दिस इज वेयर वी वांट टू कम टू दिस वर्ल्ड। सो थिंग्स और ज़्यादा लोगों का नॉलेज हो रहा है। TMJ के बारे में अगर स्पेसिफिकली मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं बोलूँगा TMJ एक बहुत ही साइलेंट जॉइंट है, आपको तकलीफ नहीं देता है। एक दो बार अगर आपका तकलीफ आया, कुछ हुआ है, इट्स ओके, बट आप ईयर्स एंड ईयर्स आप कान में कटक कटक आवाज़ सुन रहे हैं, मुंह खोलते समय अटक जा रहा है, माइग्रेन, हेडेक्स, बैक एक्स हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से बात कीजिए। अगर डेंटिस्ट ना हेल्प करे, वी आर ऑलवेज देयर, बट येस वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। Right. Okay. I think you have given lots of information for our audience. But looks like I think is it going to be a complicated process? क्योंकि बहुत कुछ treatments होने वाला है and all these things. Looks like it's a very complicated. So thanks for asking this question because it's actually very simple. Just think about physics. Like basically, if you move something, you are going to get space. Correct? Right. So if I said कि मेरा सांस लेने का जो एयरवे है, जो एयरवे से हम सांस लेते हैं, ये यहाँ पे जाके ब्लॉक हो रहा है, that means my jaw is backwards. If I get my jaw in a correct position, first thing it will decompress my joint. So it will decompress and relax all the muscles. Migraines और nerves जो pain होगा वो चला जाएगा. अच्छा. At the same time, if your jaw is forward and your tongue is forward and doesn't roll back, you'll be able to breathe. That's all that is there. इतना सिंपल चीज़ को हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी CPAP में लगा के रखते हैं। तो प्रॉब्लम इज तो आपके हिसाब से तो पीपल डज नॉट रिक्वायर एनी सर्जरी और एनीथिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लोगों को फिर आई थिंक पीपल विल थिंक अबाउट दैट, आई थिंक इट्स दे हैव टू गो फॉर surgery which might be 1 or 2 hour operations. I think it's nothing like that. Actually sleep apnea के लिए surgeries है, but if you see the success rate of it, it is quite low and there have been chances of relapse. So until if the body is forced to do something, वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। Right. This is where we neuromuscular dentist comes into picture. Even if आप नॉर्मल डेंटिस्ट के पास भी जाएंगे, आपको कुछ स्प्लिंट्स बना देंगे, कुछ नाइट गार्ड बना देंगे, एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो लोग कॉज के पीछे नहीं दौड़ रहे। हम लोग डायग्नोसिस, कॉज जब सब कुछ मिलाते हैं एंड देन वी हैव एज अ न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट द बिगेस्ट थिंग इज वी हैव advanced equipments. Okay. These advanced equipments are like jaw trackers. Jaw trackers आप समझेंगे तो जो jaw है उसको कहाँ पे लाने से आपका एयरवे खुलेगा, इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। Right. This is not a very common thing. अगर इस jaw trackers मसल EMG रीड नहीं करेंगे, मसल कहाँ पे रिलैक्स रहेगा, तो आप कुछ भी करेंगे वो सही नहीं होगा। आपको ये करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए
वो आपको चाहिए। अगर आप कल बिल्डिंग बना रहे हैं, Right. बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाना चाहेंगे आप, यू विल रिक्वायर द बेस्ट इंजीनियर्स। आप Right. मेट्रो को देखिए, कितना Obviously. एक्सपीरियंस All- रियल आता है, टनल बोरिंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। Right. सेम थिंग हमारे डेंटिस्ट में आता है। इस इक्विपमेंट्स ये कोई नया इक्विपमेंट्स भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना पुराना भी नहीं बोलूंगा। इसके कारण से इतना लोग पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो आवर Right. डेंटिस्ट कम्युनिटी जो आता है वो धीरे धीरे इस जगह पे आ रहा है। वी आर ऑलरेडी देयर, Great. थैंकफुली वी हैव बीन डूइंग दैट। सो ये टीएमजे क्या करते हैं हम लोग, ट्रैकिंग करके हम लोग जबड़े को, मसल्स को, वी रिलैक्स इट एंड ब्रिंग इट टू अ पॉइंट वेयर माय एयरवे ओपन्स अप Right. एंड यू हैव टू वेयर अ डिवाइस फॉर सम मंथ्स. You have to sleep with a device which will keep your jaw and your tongue forward, which will prevent the collapse. And as simple as that. अब कॉम्प्लेक्स भी करते हैं। अगर सब आपका सच में आपका जबड़ा बहुत छोटा है, आपका एयर ब्रीदिंग नहीं है, Right. आप अगर एक बच्चे को आप मेरे पास लेके आएंगे जिसका छोटे उम्र से सर्दी खांसी लगता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकता है, उसका पेशेंट का बहुत चाल चलन में प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो सांस मुंह से ही लेता है, दोस्त I can help even better so that they never have to face the trouble. Right. आज एक छोटा सा चीज भी अगर आपके दांत में प्रॉब्लम होता है, आप देखते हैं कि दांत टेढ़ा आते हैं तो हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाते हैं। Right. यहीं पे हम लोग डिफरेंस है। ऑर्थोडोंटिक्स में भी अगर तार बांधना पड़े, लोग नहीं सोचते क्यों आपका दांत टेढ़ा आया। इट हैज अ लॉट टू डू विद योर जॉ प्लेसमेंट। Jaw placement. Right. इसमें भी हम लोग डिवाइसेस बनाते हैं जिससे आपका जॉ एक्सपेंशन होता है। ये छोटे छोटे चीज बेटर बनता है बिकॉज वी हैव ट्रैकिंग, डायग्नोस्टिक्स, एंड देन आवर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी होलिस्टिक. वी मेक श्योर वी इंक्लूड एन ENT which will take care of your nasal breathings and your nose and everything. A chiropractor which is neck, जो हम Right. लोग कवर नहीं किए। बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि नेक के साथ जॉ का कैसे कनेक्शन है। जस्ट सिंपली थिंक दैट अगर आपका जॉ सामने रहे तो एक पीछे खिंचाव पड़ता है, विच इज बेसिकली अ मसल इज कनेक्टेड टू योर जॉ। Right. प्लस आपका सोने का स्टाइल, अगर आप साइड से सोएंगे, think about the pressure on your necks. All of these things have a lot to do with your jaw position and neck position. तो हम लोग chiropractors, osteopath के साथ काम करते हैं. We have to work with So psychologists. you work at the very root level, root cause diagnosis से लेकर Absolutely. then you go to the next step, as step by as step as process. we are working every day to find new things. Right. अगर आप मेरे को 4 साल पहले मिले होते तो मैं टंग के ऊपर इतनी बात नहीं करता, बट आजकल मैं टंग के ऊपर खूब बात करता हूँ. टंग टाइज विच इज एज सिंपल एज समथिंग दैट कैन बी डायग्नोस्ड ऑन द डे ऑफ द पेशेंट्स बर्थ. ये छोटा सा चीज अगर हम लोग ने ठीक से कर ठीक से लिया, किया तो okay. your child will not be having all the issues of adenoids, tonsils, mouth breathings. He is changing his life forever. He's going to be a nose breather, not a mouth breather. It's Right. as simple as that. So you take care of that part also. Yes, Tongue job. yes. And that is how basics we are when we go down to treatment and diagnostics. But at the same time, we are advanced with using all technologies which are available in the market to find the right diagnosis. Awesome, great. So I think, so thank you for this. Thank you for your time. And today we have discussed some other important points. And so thank you everyone for watching this our podcast. So stay tuned for more update. We will be bringing more specialists to our channel, and stay tuned and subscribe to our channel. Thanks for watching. Thanks a lot. Thank you.